Good afternoon to all on this exciting day. Namaste. How I, Krishna Gunjaria, the director of the Jumping Joys and Kridangans, say you the safe and good. Hope you and your families are safe and sounding during this lockdown period. Good afternoon, Tanvi. Very good afternoon. Today, we are having with us Miss Tanvi Sampath. She is the senior dietitian and the founder of the Healthy Mock Holistic Diet Clinic. She is one of the leading dietitians in Rajkot and Saurashtra as well. She holds a degree in the public health nutrients from MS University Baroda. Welcome, Tanvi. Welcome to our sessions. Thank you so much. It's my pleasure. And as I know that you people are one of the leading preschools in Rajkot, you people are doing excellent, and it's my privilege to be associated with you people. Thank you. Thank you so much, Tanvi. So definitely we know that in current lockdown period, it is challenging for most of us to how to be innovative, to keep our family and kids engaged in the healthy diet. So we cook normally every day for our family, which is fit for our family, and each family has its inbound style, which has been passed to their family members in each generations. So, however, today's time is challenging, and finding a way to provide all the nutrients to our family and kids is hard, tough process for most of us. So, well, today we have Tanvi Sampath to throw the light on the same topic that we are taking, that is nutrition for the family and kids during the lockdown period. So I just give you some highlight points which then we will be discussing throughout the webinar. I think so. First point she will be discussing is a balanced diet, a required balanced diet for the Hello, I'm family. not able to hear you, ma'am. Hello. Yeah, now I'm clear. Okay. The first point she is discussing is the balanced diet. Second point she will be discussing with us is child nutrition fact. Third point she will be discussing with us is how to preach right nutrients to our young buddies. The fourth point she will be focusing on the phases of the development. And fifth point she will be discussing is our duty as a parents toward nutrients. Yeah, definitely. This is the very good point you are taking, Tanvi. Sixth one is nutrition scenario today. So this 6 points she will be discussing on this seminar, on this webinar. So we request all the audience to comment on their queries and questions in the comment sections, and we will be answering the same during the question answer sessions. So let us begin the Okay, session, Tanvi. sure. Thank you so much. That was indeed a very brief you gave about my talk today, made my work very easy. So I have been doing live sessions with a number of Thank schools, you. and I have, you know, attended a huge audience. So I'll try my level best to, combine and compile all these things for my audience here today. And I'll try and keep my language as subtle as I can and very easily understandable. During the talk, if anyone, the audience watching live, cannot understand or anything, please put your thing in the live comments between the session also. Okay. Yeah. Uh, Fine. So to begin with, we are starting. The first point what we are going to discuss today is about a balanced diet, right? So what is a balanced diet? Generally, in general, when we are talking about people about balanced diet, when the word diet comes, no, लोगों के दिमाग में यही आता है कि weight कम करना है, तो diet है. नहीं, that is not what a diet is about. डाइट वो है जो आपको कंप्लीट हेल्थ में बैलेंस बनाना सिखाता है. दैट इज व्हाट अ डाइट इज ऑल अबाउट. आपकी प्लेट कलरफुल है, आप सोलफुली फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं, तो यस यू आर हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट डज नॉट मीन ओनली गेनिंग वेट और लूजिंग वेट. Diet in general is a very vast topic.
It covers your health in general. That is what a balanced diet is. Abhi, what people think generally is a diet can be followed only when you are sick. जैसे कि डायबिटीज है तो आपको डाइट फॉलो करना है, आपको हार्ट डिजीज है तो आपको डाइट फॉलो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइट है आपको एक लाइफस्टाइल चेंज है जो आपको वेरी ग्रोइंग एज फ्रॉम द एज ऑफ 2 years से आप बच्चों को फॉलो करवा सकते हैं। दैट इज अ डाइट। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आजकल है छोटे बच्चों से लेके सब में डायबिटीज बहुत ही ज्यादा प्रिवलेंट हो रहा है। इट इज कमिंग वेरी प्रिवलेंट। लाइक छोटे बच्चों में हम डायबिटीज देख रहे हैं, जुवेनाइल डायबिटीज जो हम कहते हैं। वो क्यों हो रहा है? वाई पीपल आर फेसिंग सच थिंग्स? क्योंकि कहीं पे हम लोग उसे लैक कर रहे हैं। क्या लैक कर रहे हैं? तो नॉलेज। आप ऑनलाइन जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, एफबी हम पूरा दिन सर्व करते हैं। वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ पीपल जो अपने आप को क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, क्वालिफाइड डाइटिशियंस बताते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में 5-6 महीने वर्क कर लिया तो दे कंसिडर देमसेल्व्स एज क्वालिफाइड पीपल। हम लोग जो 6 साल स्टडी करके आते हैं, वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू नो। सो नंबर वन, बी अवेयर। आप अपनी हेल्थ अगर किसी के हाथ में दे रहे हैं तो आपको हक है उसे पूछने का कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, किसी भी स्कूल में, तो हम 10 पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि डू यू नो अबाउट दिस स्कूल, ये स्कूल कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। सिमिलरली जब अपने बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन सिलेक्ट करते हैं तो वी सिलेक्ट द मोस्ट फेमस वन इन राजकोट, राइट, जिसके पास बहुत ज्यादा पेशेंट। सिमिलरली एक डाइटिशियन या एक हेल्थ केयर वर्कर को सिलेक्ट करते टाइम मेक श्योर उसके बारे में पूरी आप रिसर्च करें। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस डाइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है चाइल्ड न्यूट्रिशन फैक्ट्स। व्हाई डू वी बिगिन विद चाइल्ड न्यूट्रिशन फैक्ट्स? व्हाई नॉट सीधा अडल्ट का न्यूट्रिशन डिस्कस करें? बिकॉज एक चाइल्ड न्यूट्रिशन फैक्ट ऐसे हैं कि जैसे हम एक घर पे छोटा पौधा ला रहे हैं, वेरी स्मॉल प्लांट, अ सैपलिंग, यू नो। उसको घर में लाना है, रखना है, बीज बोना है, धीरे धीरे पानी, खाना, धूप, थोड़ी सी ओस, थोड़ी सी बूंदे। there was a very beautiful nursery rhyme when I was in school about this. आज मैं बीज Yes. हूँ, कल बनूंगा अंकुर, you know. It's a very similar pattern. Even when it's considered for nutrition, it's a similar pattern you follow. कि जैसे आज हम छोटा सा बीज, एक छोटा सा बेबी है, उसको घर में ला रहे हैं। मदर्स जैसे ही वो 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं ना, मदर्स कंप्लेन, हमारा छोकरा तो मैगी खाए, हमारा छोकरा तो वेफर खाए, हमारा छोकरा तो XYZ खाए। प्लीज, उनको नहीं मालूम बाजार में क्या मिल रहा है। आपने उनको एक्सपोज किया तो उनको मालूम है कि बाजार में क्या मिल रहा है। इन न्यूट्रिशन हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एज अ मदर आप तब अपने आप को एकदम सफल मॉम कंसिडर कर सकते हैं जब आपका 2-2.5 साल का बेटा या बेटी आपके साथ टेबल पे बैठ के लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जो आपने बनाया है वो। देन यू आर सक्सेसफुल एज अ मदर, राइट। जो भी उसकी प्लेट में आ रहा है वो बच्चा खा रहा है। अभी मेरी यहाँ पे 6-7 साल से मैं प्रैक्टिस चला रही हूँ, ऐसे लाइव सेशंस में मैं जाती हूँ। वहां पे मैंने क्या मार्क किया है कि बच्चे का फेवरेट खाना वो है जो उसकी मम्मी का फेवरेट है या फिर जो बनाने में इजी है। तो उसके लिए बच्चों को खिलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो पौधा हम छोटा सा घर पे लाए हैं वो अपने तरीके से ग्रो होने वाला है, उसके अंदर अपना DNA है, राइट। वो जो आपकी और आपके हस्बैंड की चॉइसेस है, जरूरी नहीं है कि वो भी आपके बेबी की चॉइसेस हों। तो अपने बेबी के साथ बैठिए, उससे बातें कीजिए, यू विल रियलाइज व्हाट योर चाइल्ड लाइक्स, व्हाट योर चाइल्ड डजंट लाइक। फॉर एग्जांपल, इन माय फैमिली नो वन लाइक्स करेला। इट्स लाइक अ वेरी फूड जो कभी कभी घर में आता है, बट माय चाइल्ड इज वेरी फॉन्ड ऑफ करेला चिप्स। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वही आपके बेटे अब चाइल्ड को पसंद हो। ओके, तो गेट ऑफ योर चाइल्ड बैक और उसकी चॉइसेस से उसे ग्रो करने दीजिए। हाँ, एज अ पेरेंट ये आपकी चॉइस है कि आप उसके अंडर रहें, ये गुड है, ये बैड है, ये आपको उसे समझाना है, लेकिन उसकी चॉइसेस उस पर छोड़ दीजिए। बी इट न्यूट्रिशन, बी इट डाइट, बी इट सिलेक्टिंग एनीथिंग। तो इससे क्या होगा पता है? आपके चाइल्ड का डेवलपमेंट बहुत सही होगा। मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि अडोलेसेंट
12-15 साल के जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं खासकर, दे डोंट नो हाउ टू सिलेक्ट अ करियर। उनको करियर सिलेक्शन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने ही बचपन से बोला है कि यही करना है तुम्हें, यही खाना है तुम्हें, यही पहनना है तुम्हें, यही करना है। तो कहीं पे हमने उनका डेवलपमेंट स्टॉप कर दिया है। ये उनका फिजिकल, मेंटल, हर एक ग्रोथ के लेवल पे उनको इफेक्ट करता है। अब वही आप दूसरे Yeah. हैंड पे ले लें। यस मैम, यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं, डेफिनेटली यू आर राइट। डेफिनेटली कि आज जैसे कि है, बहुत सारे हम एग्जांपल्स सुनते हैं कि अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, तो वी हैव दिस सो कॉल्ड सोसाइटी प्रेशर ऑन अस कि वो क्या बोलेंगे, राइट? हाँ, कमिंग सही बैक टू है। न्यूट्रिशन पॉइंट, इसी को मैं न्यूट्रिशन पॉइंट से कनेक्ट करती हूँ। पड़ोसी का बेटा 5 रोटी खाता है तो मेरे बेटे को 6 रोटी खानी है, कंपल्सरी है। वी हैव मेड इट अ कॉम्पिटिशन, यू नो, इट इज नॉट दैट। जरूरी नहीं है कि 6 रोटी खा के आपका बेटा 6 सिक्सेस मारेगा, उसका बेटा नहीं मारेगा। आपके चाइल्ड की बॉडी की नीड्स आर वेरी डिफरेंट। एक माँ के 2 बच्चे भी सेम नहीं होते हैं। सो हाउ कैन यू कंपेयर योर चाइल्ड विद समवन एल्स? सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद एनी अदर। अगर आपका बच्चा स्टडीज में वगैरह में अगर थोड़ा सा भी आगे है ना, तो अपलॉड, ये सीखिए एज पेरेंट्स। अगर आपके बेटे ने या आपके बच्चे ने अपने हाथ से खाना खाया है और वो आधी रोटी भी फिनिश किया है ना, तो अपलॉड कि उसने कुछ अचीव किया। वो धीरे 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 जाएगा। सबसे बड़ी चीज व्हाट यू हैव टू हैव इज पेशेंस, जैसे कि हम रखते हैं। हमारे यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं तो डायबिटीज एंड सब कुछ हम स्ट्रिक्टली रेड लाइन में लिख के देते हैं, नो शुगर, और वो शुगर केन जूस पी के आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम उन पे चिल्लाएं या हम उन पे गुस्सा करें कि आइंदा से मत आना, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट यू एनी मोर। वी कीप पेशेंस। सॉरी, इट्स अ वेरी सिमिलर प्रोसेस विथ योर किड्स। आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना है जब वो बड़े हो रहे हैं। धीरे 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 उनके फेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ अबाउट टीचिंग न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ पे हैबिट्स नहीं है। स्कूल में, प्री स्कूल्स में वी डोंट टीच न्यूट्रिशन। बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे सिस्टम है कि प्री स्कूल्स में से या स्कूल्स में से एक चार्ट आता है। वो चार्ट के हिसाब से मम्मीज को बना के भेज देना है। लेकिन उस चार्ट क्यों बनाते हैं, क्यों बच्चों को ऐसा टिफिन भेजना है, वो कहीं पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो न्यूट्रिशन, हाउ अबाउट एक चाइल्ड को कैसे धीरे 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 आप खाना खिलाना है, कौन से फेजेस में उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, ये प्री स्कूल के लेवल से चाइल्ड को समझाना है। जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को नहीं बोल सकते कि बेटा दाल खा, उसमें प्रोटीन है, वो नहीं सुनेगा क्योंकि उसने ये माहौल पहले से नहीं देखा है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होके 5th 6th में आएगा, साइंस की बुक में प्रोटीन है तो वो प्रोटीन समझेगा। लेकिन ये जो बीच का गैप है ना, 5 to 15, जहाँ पे वो अपने अडोलेसेंस अपने प्यूबर्टी को अटेन करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो मिस आउट। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे ड्यूअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है। जैसे कि या तो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं या तो बहुत ज्यादा पतले हैं, बीच में कुछ नहीं। तो दिस हैपेंस जब ये सब मिस हो रहा है। आप बहुत ही बेसिक से न्यूट्रिशन है, डाइट है, वो स्कूल के लेवल से सिखाना शुरू करें। बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं है कि यू टीच देम गामा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड ऑल योर, जो हम पढ़ते हैं वो नहीं। लेकिन डाइट क्या है, उसका आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होगा, यू नो, हैप्पीली चिल्ड्रन विल ईट व्हाट दे आर सर्व्ड। उनको क्यों छोटा भीम कार्टून में भीम लड्डू खाता है तो खाना पसंद है? क्योंकि भीम ने सिखाया कि लड्डू खाने से स्ट्रांग बनते हैं, राइट? ऐसा एक कार्टून आता है, पता नहीं ऐसा ही उसको होता है। ऐसा ही होता है डेफिनेटली। बच्चे जो हमारे से अडॉप्ट करते हैं सारी चीज, तो डेफिनेटली वी हैव टू बी
हमारा जो बैलेंस डाइट, हमारा जो न्यूट्रिशंस देने वाला जो तरीका है वो हमें चेंज करना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। डेफिनेटली। एंड वो क्या है मैम, जब हम छोटे थे ना तो बहुत अच्छे कार्टून्स आते थे, जैसे कि वो पोपाई सेलर मैन आता था जो स्पिनच का डब्बा खोल के स्पिनच खाता था, और हम सबका स्पिनच यूज्ड टू बी अ फेवरेट वेजिटेबल क्योंकि वो पोपाई खा रहा है। तो यहाँ पे आजकल के बच्चों में वो रोल मॉडल्स मिसिंग है, क्योंकि मम्मी है ना वो 80% टीचर बन गई, मम्मी मम्मी नहीं रही। क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो मम्मी को टेंशन फ्री हो जाना है, बच्चा घर पे आता ही, अभी तो बेचारे ने बैग भी नहीं रखा कि मम्मी ने शुरू कर दिया, क्या होमवर्क आया है, डायरी दिखा, टिफिन फिनिश किया नहीं किया, होमवर्क करने बैठ जाओ, कल का क्या है, दिस दैट दिस दैट दिस दैट। टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। आप घर पे एज अ मदर रहो, टीचर्स को स्कूल में उनका काम करने दो। सिमिलर मैनर पे डाइट वर्क करता है, बिकॉज बच्चे के माइंड में जो आप उन्हें सिखा रहे हैं वही उससे धीरे धीरे सब कुछ अडेप्ट करने पे, द चाइल्ड विल बी वेरी अडेप्टिव। यू कैन स्ट्रेट अवे से एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को कि बाहर का हॉट डॉग मत खा, इट्स अनहेल्दी, वो खाएगा क्योंकि आपने उसे पहले से नहीं बताया है। आप ये उसे कब समझा सकते हैं, जब एक 2.5 साल के बेटे को आपने सिखाया है कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। इसका मैं एक बहुत छोटा लाइव एग्जांपल देती हूँ। माय चाइल्ड, उसे बहुत ज्यादा वेफर्स वगैरह से मैंने एक्सपोज नहीं किया था जब तक वो अंडरस्टैंडिंग एज में नहीं था। फिर एक दिन उसने कहीं पे देखा कि लोग हैप्पीली वेफर्स के पैकेट खोल रहे हैं एंड वेफर्स खा रहे हैं, तो उसने डिमांड किया कि मुझे भी खाना है, सब खा रहे हैं। मैंने उसे लाके दिया। अभी मैं मना करूंगी, मैं रिबेल करूंगी तो उसे लगेगा कि ना बोल रही हूँ तो श्योर है कि इसमें कुछ अच्छा है क्योंकि मम्मी ना बोल रही है, राइट। दिस इज अ थॉट प्रोसेस, ये बच्चों के मोटर डेवलपमेंट स्किल्स, उनकी थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आप सीधा कुछ ना बोल रहे हैं ना तो नो मीन्स यस, उनकी डिक्शनरी में मम्मी मना कर रही है मतलब डेफिनेटली समथिंग इज गुड। when we discuss psychiatric, जब चाइल्ड न्यूट्रिशन करते हैं तो इट इज नॉट ओनली अबाउट न्यूट्रिशन, इट इज अबाउट चाइल्ड मेंटल ग्रोथ एज वेल। तो मैंने अपने बेटे को लाके दिया पैकेट, उसने खाया। फिर सेकेंड डे उसने सेकेंड पैकेट डिमांड किया, मैंने लाके दिया, उसने खाया। फिर एक दिन मैंने वही पैकेट लाया, उसे मैंने गैस पे रखा, बर्तन में डाल के मैंने उसमें एक जूट मूट का कॉकरोच डाल दिया। फिर मैंने उसे समझाया कि मम्मी जो घर पे बना के देती है वो फ्रेश है, बाहर से लाए हुए में ये है या नहीं तुझे क्या मालूम, यू डोंट नो, टैकल देम इन द वे दे अंडरस्टैंड। वो दिन और आज का दिन, माय सन डजंट लाइक टू ईट, और पैकेट में से कुछ भी खाना उसे नहीं पसंद है क्योंकि उसके माइंड में है वो फ्रेश नहीं है, वो गंदा है। अभी यही चीज अगर आप बच्चे को ऐसे समझा रहे हो कि नहीं मत खा, वो तो गंदा है, खराब है, तो वो श्योर खाएगा, आपसे छुपा के खाएगा। इंस्टेड अगर वो मांग रहा है तो उसे एक बार दो बार लाके दो, फिर समझाओ। यस मैम, यू वांट टू टेल समथिंग? नो डेफिनेटली यू आर, बच्चे जिद करते और मांगते तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड देम, देन एंड देन ओनली वी कैन टैकल दैट थिंग्स। डेफिनेटली दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज मैं जो अभी इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है अबाउट कुकिंग। when it comes to diet, when it comes to nutrition, we limit it to women, we limit it to girls, ये नहीं होना चाहिए। अभी सबसे बड़ी चीज जो अभी हुई, ये पैंडेमिक COVID-19, it has taught you to live in your house, it has taught people to live together, कुछ नया लेके आया है ये चीजें। तो इट बिकम्स वेरी मैंडेटरी कि एक हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों को कुकिंग आनी चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए व्हाट इज सर्व्ड ऑन द टेबल। So when it comes to cooking, when it comes to diet, don't limit it to don't make it gender biased. That is what I want to discuss. It is very necessary कि दोनों को आना चाहिए, right? Correct me if I'm wrong. डेफिनेटली अभी कोविड What? 19 में तो डेफिनेटली सारे हस्बैंड अभी सीख गए हैं कुकिंग मैम। Not necessary, ma'am. There is societal pressure that men won't go in the kitchen. So remove this gender का label from everything and indulge into, और ये कब होगा पता है,
जब आप वो 3-4 साल के बच्चे को अपने साथ किचन में इन्वॉल्व करेंगे ना कि चल बेटा मैं रोटी का आटा गूंद रही हूँ, तुझे भी करना है, डिस्पाइट ऑफ द जेंडर। अगर बच्चों को रोटी बेलना आता है ना, तो आई हैव सीन पीपल सेइंग लड़का होके रोटी बेलता है, बड़ा होके औरत बनेगा। आई मीन रियली? नहीं, वो बड़ा होके अपनी फैमिली मेंटालिटी। और अगर दाल में प्रोटीन है तो जरूरी नहीं है सिर्फ मम्मी को पता हो, ये पापा को भी इक्वली मालूम होना चाहिए, क्योंकि आजकल एवरी सेकंड वुमन इज करियर ओरिएंटेड। अगर मम्मी बाहर काम पे जा रही है तो पापा को भी पता होना चाहिए कि बेबी की प्लेट पे क्या सर्व हो रहा है। आप 5 साल के बेबी को बाहर से डोमिनोज का पिज्जा लाके नहीं खिला सकते हैं, राइट? So this is about it. Now I will come to a very crucial point about nutrition. कि जैसे न्यूट्रिशन में बेबी के ग्रोथ में पिलर्स होते हैं, वैसे ही न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा पिलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फैट्स, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव कैल्शियम, आयरन एंड फोलेट। ये सब जो है ये न्यूट्रिएंट्स मिक्स होके 5 तत्व जिसको बोलते हैं। वैसे जैसे हमारा शरीर बना है वैसे ही इन 5 चीजों से न्यूट्रिशन बना है। अगर इनमें से एक भी चीज बेस में इनिशियली चाइल्ड में मिसिंग है तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ में रुकावट आएगी। जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की लड़कियां ये बोलना सीख गई हैं कि यू शुड नॉट ईट कार्बोहाइड्रेट्स, यू विल गेन वेट। सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड की लड़कियां ऐसा बोलती हैं, मैंने सुना है। प्लीज डोंट प्रीच, उनको रॉन्ग मत सिखाओ, इट इज रॉन्ग। कार्बोहाइड्रेट्स आर इनिशियली वेरी मच रिक्वायर्ड अंटिल एंड अनलेस आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं। नेक्स्ट इज कैल्शियम। हम लोग इंडिया में खास करके एवरी सेकेंड और थर्ड वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, गुठड़ना दुखावा, सांधा पेन। यू नो, एज अ मदर हम दूध का ग्लास लेके बच्चे के पीछे भागेंगे, अगर वो नहीं पी रहा है तो वो टेबल पे पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि खुद पी गए। वेरी वेरी रेयर मदर्स डू दैट, बट इट इज जितना कैल्शियम आपके बेबी के लिए नेसेसरी है उतना एक वुमेन हेल्थ के लिए भी कैल्शियम नेसेसरी है। सो डोंट मिस आउट ऑन योर न्यूट्रिएंट्स। अगर बेबी नहीं पी रहा है तो आप पी लीजिए, एंड मेक श्योर देयर इज नो शुगर इन द मिल्क दैट गोज इनटू योर चाइल्ड्स डाइट। एक चाइल्ड के डाइट में शुगर नहीं जाना चाहिए इन एनी फॉर्म। मदर्स यहाँ पे मदर्स क्या करते हैं पता है, दूध का ग्लास लेंगे, उसमें 2 चम्मच बॉर्नविटा जिसमें ऑलरेडी शुगर है और 2 चम्मच शुगर, माँ का प्यार, एंड देन मिक्स इट एंड गिव इट टू द चाइल्ड। तो न्यूट्रिशन तो जाने से जा रहा है, एक्सेस शुगर आपके बेबी के डाइट में जा रहा है। वो उसके मेंटल ग्रोथ को बहुत ज्यादा, जो एक्टिव होने के हॉर्मोन्स हैं, आपका चाइल्ड बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव या बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाएगा एक्सेस शुगर जाने से। तो इट हिंडर्स, दूसरे मिनरल्स को अब्सॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी में। नेक्स्ट आई विल कम टू आयरन। Okay, आयरन so what, का इम्पोर्टेंस, Tanvi, so what we can give to the kids if we don't prefer the sugar, then what we can give it to the kids from your side? शुगर की जगह पे मत दो, कुछ भी मत दो, जरूरी ही नहीं है। Okay, fine. जैसे कि मिल्क देना है तो आप उसे बादाम से फ्लेवर करो, आप उसे हल्दी डाल के फ्लेवर करो। Okay, that's good. या नो नीड ऑफ एडिंग शुगर, शुगर इज वाइट पॉइजन। आप वाइट पॉइजन अपने बेबीज को सर्व कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज वेरी बैड। और कैल्शियम, अगर फॉर एग्जांपल दूध बच्चे नहीं पीते हैं, कई कई बच्चे होते हैं जिनको दूध नहीं पसंद है, तो उनको पनीर दो जो घर में बनाया हुआ है, दही छाछ जो घर में हम बनाते हैं वो ही दो। आप बाजार से लाके नहीं दे सकते हैं दही और छाछ, क्योंकि उसमें नेसेसरी प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं। तो वो Okay. इफेक्ट तो नहीं करेगा लेकिन हार्म जरूर करेगा, बाजार का लाया हुआ दही और छाछ, Okay. राइट? इसका एक एग्जांपल ये है कि बाजार का लाया हुआ दही 3 दिन भी घर में फ्रेश रहेगा, और घर का दही अगर फ्रिज में रखने से आधा घंटा भी इधर उधर हो गया तो खट्टा हो जाएगा।
right? So it is the probiotics which is the available in the culture in the curd, जो उसे उसकी qualities पे depend करता है. Next point I will cover is iron. Again very necessary. आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है. जरूरी नहीं है कि एडोलेसेंस में जाने के बाद ही आयरन चाहिए. आयरन कब से चाहिए मालूम है? जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना और उसके पेट में बच्चा होता है, तो जब तक हम फाइंड आउट करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, ताकि जो 1 मंथ बीत गया है, उस 1 मंथ में आपके बेबी का ब्रेन 80% डेवलप हो गया है. और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे जरूरी आयरन, फोलेट, और आपके पास नहीं है तो आप सोच लीजिए आपका आउटकम कैसा है. तो जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से आयरन जरूरी है और हम लोग नहीं खाते हैं. वी मिस आउट. जैसे कि अगर आप किसी भी विदाउट जिसके पास अच्छा नॉलेज नहीं है उसे पूछ लो तो आयरन का एग्जांपल आप मुझे दीजिए. कृष्णा मैम, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ आयरन. आपका म्यूट है माइक. हाँ. हेलो. या यस मैम. आयरन किस में सबसे ज्यादा आयरन मिलता है? डेफिनेटली आई एम आल्सो नॉट knowing. You tell me. अगर हम यही क्वेश्चन अपने लाइव ऑडियंस से पूछें तो वो भी आंसर दे सकते हैं मुझे. अगर लाइव ऑडियंस में से किसी को मालूम है Yes, कि आयरन सबसे ज्यादा किस में है तो प्लीज एनीवन, आई विल वेट फॉर अ मिनट. हम अगर जनरल पब्लिक को पूछे ना तो सबसे पहला आंसर आएगा पालक, स्पिनच. लेकिन स्पिनच में आयरन होता ही नहीं. ओके. उसमें कैल्शियम अच्छा होता है, लेकिन आयरन जो है वो सबसे ज्यादा ब्लैक तिल, जो अपने तिल आते हैं ना, सेसमे सीड. ओके. या तिल में सबसे ज्यादा होता है. यस, अप टू सम एक्सटेंट इन डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब में आयरन नहीं होता है. आयरन रिच फूड इज वेरी नेसेसरी कि आप उसे मिक्स करके दें. जैसे कि बीट रूट है तो बीट रूट के मदर्स मैंने देखा है आजकल लड्डू बनाते हैं. प्लीज नो, अगर आपने उसे प्रोसेस किया तो आयरन खो जाएगा. यू विल लूज आयरन. आयरन इज अ वेरी डेलिकेट न्यूट्रिएंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से कि अगर आपके बच्चे को पालक इंट्रोड्यूस करना है तो मदर्स विल मेक पालक का थेपला और उसे चाय के साथ हैप्पीली सर्व करें. नो, कॉम्बिनेशन इज वेरी नेसेसरी. जैसे कि अगर आपको डेट्स देने हैं तो वो इनडाइजेस्टेबल है. अप टू द एज ऑफ 7 इयर्स का बेबी जब तक वो ज्यादा एक्टिव नहीं है वो डेट्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसे घी के साथ देना जरूरी है. राइट. सो आयरन बिकम्स वेरी नेसेसरी जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है. इफ इट इज अ गर्ल, वेरी नेसेसरी, शी विल अटेन हर प्यूबर्टी, जहाँ पे उसे आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में आयरन टैबलेट्स देते हैं. तो वी शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट? वी मस्ट सप्लीमेंट देम विद आयरन. नेक्स्ट आई विल कम फैट्स. फैट्स आर नॉट बैड. फर्स्ट थिंग, जैसे ये माइंड में वर्ड आता है ना फैट्स, इट मीन्स इट्स बैड. हाँ. जैसे कि बेचारा आलू, आलू को तो विलन ही बना दिया है सबने मिलके कि पोटैटोज आर बैड. नो, पोटैटोज बैड नहीं है, फ्रेंच फ्राइज बैड. आ रही है थ्योरी समझ में? Because it adds the oil. That's why. यस, I think so. इट एड्स ऑयल. सिमिलरली अगर हम बोले ब्रोकली, तो गुजराती मदर्स वेरी रेडीली विल मेक ब्रोकली का भजिया. तो उसका सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ गया? राइट. तो द थिंग इज कि जब आप उसे दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स और आपको मालूम है कि हम उसे क्या दे रहे हैं आपके बेबी को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसे सिखाइए. आप उसे टीच करिए कि अगर आप बेटा दाल खा रहे हो तो आपको इसमें से ये मिलेगा. मैंने बहुत टाइम देखा है कि पूरी थाली भर के मील है, बेबी हैज जस्ट हॉक द रोटी और बाकी सब ऐसे ही पड़ा है.
यही चीज वो एज अडल्ट कैरी करेंगे। वो सिर्फ सब्जी के पानी में डिप करके रोटी खा रहे हैं। द सब्जी इज नॉट गोइंग इन। वो सब्जी एज अ होल इन अ प्लेट इज रिमेनिंग, बी इट वॉट एवर। और अगर हम किसी भी मदर्स को ड्यूरिंग द लेक्चर पूछते हैं कि व्हाट इज योर चाइल्ड्स फेवरेट वेजिटेबल, 80% ऑफ द आंसर इज भिंडी। My child too like. हाँ, क्योंकि वो भिंडी खिलाते वक्त बेबी को मोबाइल नहीं दिखाना पड़ता, मोबाइल से वो खा लेता है। इट्स लाइक दैट, राइट? हैव यू ट्राइड? कभी कुछ और ट्राई किया है कि ट्राई करते हैं कि बेटा शायद टेस्ट कर, ये भी तुझे पसंद आए। यू नो, हमने बहुत इजी वे बना दिया है, मोबाइल का स्क्रीन दिखा के वी फीड द चाइल्ड। यही चाइल्ड जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, मैंने देखा है हमारे यहाँ पे गैदरिंग्स का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे रक्षाबंधन है या कुछ भी है तो सब गैदर्स होते हैं, गैदर फैमिली गैदरिंग्स होती हैं। वेरी नाइस, सबने मेहनत करके, बुआ मामी चाची ने बहुत अच्छा अच्छा टेबल स्प्रेड किया होता है। वो एक 11-12 साल का बच्चा ऐसे पैर इकट्ठा करके मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, प्लेट में क्या है क्या नहीं उसे नहीं मालूम, उसने बस खा लिया जो आया। ये उसने तब सीखा था जब उसे उसकी मम्मी भिंडी खिला रही थी, जब वो 2.5 साल का था। So forget the part of nutrition, the child is not even eating consciously. तो क्या डेवलपमेंट हुआ? जीरो, राइट? सो अवॉइड दिस थिंग, मोबाइल स्क्रीन से हटाइए। यू कैन टेल स्टोरीज, मैम यू कैन डू दिस फ्रॉम योर प्ले हाउस एज वेल, दैट मदर्स Yeah, को स्टोरीज सिखानी ही है। definitely. We will inputs. यस, और दैट इज द बेस्ट टाइम, एक मदर के लिए बेस्ट टाइम है अपने चाइल्ड के साथ स्पेंड करने के लिए। उसको फीड करिए और स्टोरीज करिए, उसका और आपका दोनों का टाइम पास भी हो रहा है और कंप्लीट न्यूट्रिशन उसके पेट में आपके हाथों से जा रहा है, ना कि मोबाइल की स्क्रीन से। करेक्ट? Yes, ma'am. Any question? Anyone who is watching live, any questions? I love to welcome questions. Yeah, definitely, audience. Questions to Tanvi. Because this, I love interactive sessions, you know, where my audience is interacting with me. Okay, I will show you one very nice thing. I have done this in one of my presentations. I have divided food into zone wise, and this will become very easy for people to understand. बाकी का जो प्रेजेंटेशन है, इट डजंट, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो है एक इम्पोर्टेंट कि फूड को आपको कैसे समझना है। Okay, ma'am. We do have one question from Trupti. Yes, We make a habit that all the family members even don't call while receive taking call. they call while taking milk. Yes, definitely. Mobile is a big no in the house, huh? Make it a habit because kids are learning from you. My screen is available. No. Okay, I think it is not available. Hello.
Sorry, I lost the connection. Okay, we have one more question, ma'am. When should we give kids be given sweets as they are at home? They crave for desserts and sweets. Very nice question. Is they crave for desserts and sweets means they are lacking on some nutrients. उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कंप्लीट कीजिए. गिव देम सप्लीमेंटेशन. दे शुडंट क्रेव फॉर स्वीट्स. मैग्नीशियम आयरन डेफिशिएंसी विल हेल्प योर चाइल्ड क्रेव फॉर स्वीट्स. और ये चीज जो ये स्वीट्स वाला क्वेश्चन है ब्रिंगिंग इनटू अकाउंट कि वी हैव मेड इट अ ट्रेंड. हमने ट्रेंड सेट किया है. कुछ भी ओकेजन है तो हम केक ला के रख देते हैं. क्यों? यू नो केक मीन्स व्हाइट फ्लोर मैदा जो मैं रेड जोन में डालती हूँ. शुगर्स अगेन जो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ. दोनों चीजें मिला के वो क्या बनता है जो बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं. मैं मना नहीं करती आप केक्स दीजिए लेकिन वंस अ वाइल इज फाइन. लेकिन आजकल तो क्या हो गया पता है 6 मंथली बर्थडे है केक लेके आओ. वो हाफ ईयरली एनिवर्सरी है केक लेके आओ. घर में रवे का सीरा बना. दैट इज व्हाट आई से. हम भूल गए हैं. पहले गुजरात में ये होता था कि कुछ भी हैप्पी ओकेजन है तो मम्मी लापसी बनाती. हम वो भूल गए. केक रेडी मिल रहा है बाहर लेकर आओ फटाफट. द सेलिब्रेशन मस्ट बिगिन. वेयर डज हेल्थ गो? लापसी मीन्स होल व्हीट. यू आर कंज्यूमिंग होल व्हीट दैट इज हेल्दी एनी डे. और उसमें हम लापसी घर में जैसे बनाते हैं आप जितनी चाहे उतनी शुगर ऐड कीजिए. केक में तो ऑप्शन नहीं है आपके पास. अगर शुगर फ्री भी है तो वो फिर भी मैदा तो है ही. एम आई राइट? Yes, तो definitely. जो भी आज ये सुन रहे हैं वो एक चीज को माइंड में कर दीजिए. प्लीज केक मत लाइएगा. है ना? Yes, we have one more question. Ma'am, my son doesn't like milk. Is it compulsory to give milk? Yes, very good thing. We people, हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं हम सजेस्ट करते हैं कि मिल्क मत दीजिए. एनी डे बेटर है क्योंकि आजकल के मिल्क में मिल्क से ज्यादा दूसरी केमिकल्स मिक्स की हुई होती हैं. Until and unless आप जानते हैं कि वो करेक्ट सोर्स से आ रहा है तो आप मिल्क दीजिए. अदरवाइज जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पनीर है दही है वो बना के दीजिए तब तक ठीक है. एक चीज नोटिस की है मैंने मेरे 2-3 पेशेंट्स में कि एक मेरी पेशेंट थी जिनको कोई भी मेडिसिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था. हमने बहुत ट्राई किया बट शी वाज ऑलवेज सिक. कुछ भी दो उनको सप्लीमेंट किया वो बहुत ही बीमार रहती थी. मैंने उसका 6 मंथ्स मिल्क बंद कर दिया और उसकी मम्मी को देखना भी नहीं पड़ा. शी हैजंट विजिटेड अ डॉक्टर सिंस 8 मंथ्स नाउ. So it's completely fine. Milk is not a complete thing, you know. हमारी जो गाय है यहाँ पे जो स्ट्रीट्स पे घूमती है वो गार्बेज खाती है. हम ही डालते हैं तो वो क्या दूध देगी? गार्बेज. Until and unless आप जानते हैं कि वो कोई अच्छे से सोर्स से नहीं आ रहा है कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ से आप श्योर हैं कि दूध प्योर है तब तक मत दीजिए. Yes, instead of sugar, what advice will you give to your child? Don't give. Why you want to give sugar? And in case you want to make some nice sweet and give it to the child, use jaggery. Good. Good का use कीजिए. But sugar and jaggery are like कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो is the same. See, supplements when we are talking about Priyanka ma'am, yeah. When we are talking about supplements, no, it is बहुत ज़्यादा vary करता है. As a dietitian, मैं कभी भी पेशेंट को नहीं बोलती कि आप यही सप्लीमेंट लीजिए क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कैसे इनटेक कर सकते हैं. उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. कौन सा सप्लीमेंट बच्चे को सूट करता है. बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है एंड आई डोंट सपोर्ट एनी ब्रांड. तो आप ट्राई कीजिए. जो ब्रांड आपको पसंद है वो प्रोटीन सप्लीमेंट लाइए और अपने चाइल्ड पे ट्राई कीजिए. 1 or 2 brands I cannot name any, right? Yeah, there are lots good available जो बच्चों की ग्रोथ. हाँ, लेकिन ये बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये सब नहीं. These are all loaded with sugars. Right? Yes, any other question?
I'll come to my last point now, that as parents, it is our duty to teach our child about health. Very important. The difference between junk and health, right? हम बाहर जाते हैं तो we make sure that Definitely, हमारा we are taking a session for the preschool. We are I taking a think session for the healthy and junk food, and the kids loving that session. yes, क्योंकि अगर हम जैसे डाइन इन करने के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे राजकोट में तो इट इज लाइक एवरी वीकेंड पीपल आर आउट डाइनिंग आउट, राइट? तो मेक श्योर आप घर पे से कुछ बना के लेके जा रहे हैं. दैट इज हाउ हेल्थ की हैबिट बनेगी. मैंने अब रेस कोर्स पे जस्ट ऐसे राउंड लेने के लिए जाए ना, तो आयरनी देखिए कि मम्मी की पैकेट पर्स में पैकेट फूड होंगे ही. आई एम नॉट टेलिंग एनी सर्टेन ब्रांड, लेकिन पैकेट होंगे ही. अगर मम्मी को बैठना है, कुछ भी है, तो वो पैकेट्स निकाल के बच्चे खा रहे हैं हैप्पी. डोंट डू दैट. जितना टाइम आपको मार्केट से वो पैकेट लेके पर्स में रखने में लगेगा ना, उतना ही टाइम आटा गूंद के 2 रोटी बनाने में लगेगा. सेम टाइम, नो डिफरेंस एट ऑल. हाँ, और वही रोटी में आप चीज डाल के दीजिए बच्चे को, इट विल बी मोर हेल्दी. चीज इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. ओके, सो इट इज आवर हैबिट कि उनको फ्रेंच फ्राइज नहीं सिखाना है. आज एज अ प्री स्कूल टीचर मैम आप भी ये फेस कर रहे होंगे कि बच्चों के टिफिन Yes, में बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज आते हैं, it राइट? is coming. एक्सक्यूज होता है कि बच्चे को पसंद है, वो फिनिश करके आता है. नहीं, जितना टाइम आप एक पोटैटो ले, पील करो, कट करो, फ्राई करो, उतनी देर में रोटी सब्जी बन जाएगी, उतनी देर में वेजिटेबल पराठा बन जाएगा. लेकिन एज अ मदर यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. शायद एक बार वो डिब्बा वापस आएगा, दूसरी बार डिब्बा वापस आएगा. आप उसे समझाओ कि तुझे यही फिनिश करना है. मदर बनो, टीचर नहीं. पहले की मम्मियां होती थी, खाना है तो खा, नहीं तो सो जा, राइट? आजकल मम्मी बोलती है नहीं नहीं नहीं, चल मैं तुझे टीवी करके देती हूँ, मैं तुझे मोबाइल देती हूँ, तू खा ले, छोड़ दो. एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो सामने से मांगने आएगा कि जो भी बना है मुझे दे. करेक्ट? सो इट इज आवर ड्यूटी टू टीच देम. एंड फर्स्ट में जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि उनकी खुद की चॉइसेस हैं, फोर्स मत कीजिए. उनसे बात करते टाइम उनको पूछो कि तुझे क्या पसंद है, उसमें उनको हेल्दी अनहेल्दी समझाओ, फिर उनकी चॉइसेस के हिसाब से अपनी डिशेस बना. एंड ट्रस्ट मी, आप जो भी बनाएंगे वो खाएंगे. अभी जैसे कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, सब लोग घर में है, लॉकडाउन में है, एक्सेस फ्राइड फूड, एक्सेस स्वीट बन रही है. वो आपकी हेल्थ पे, बच्चों की हेल्थ पे क्या इफेक्ट कर रही है ये किसी ने नहीं सोचा. हमारे लिए तो बेनिफिट है. लॉकडाउन ओपन होते ही हमारे पास तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स आने वाले हैं. लेकिन आपने अपनी हेल्थ से क्या किया? तो आप जो खाते हैं वही आपके बच्चे आपको देख के सीखते हैं, राइट? ये इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि ट्रेन में एक मदर और बच्चा ट्रैवल कर रहे थे. वहां पे एक बाजू की सीट पे आंटी ने पूछा कि मोबाइल के जमाने में आपका बच्चा बुक कैसे पढ़ रहा है? ये इतने गेमिंग के जमाने में जहाँ पे सब बच्चे मोबाइल पे गेम खेलना, वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, आपका बच्चा बुक कैसे पढ़ रहा है? तो उसकी मदर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं पढ़ रही. यहाँ पे क्वेश्चन आया था मील टाइम पे मोबाइल का, वो सेम यहाँ पे होता है. जब आप हाथ में फोन लेके पूरा दिन घूमते हैं तो बच्चों को लगेगा कि ट्रेंड है, घर में सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है. First of all, we have यस. Okay, I want you to give me the name that which dietitian has recommended fried items are good for growing age. ये मुझे नाम चाहिए. आप मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं.
because this is a very big issue. Fried food is any day not recommended for anyone, for any age group. Who told you, ma'am? This which dietitian recommend that fried items are good? This must be the dietitian calling खुद को celebrity dietitians बुलाते हैं वैसे में से कोई होगा. Atherosclerosis is a condition जहाँ पे yes, very good. Name was expected. छोड़ दो उनको. मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना है बिकॉज मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ. ठीक है. आर्थेरोक्लोरोसिस जिसको हम गुजराती में હૃદયની નળી બ્લોક થવાનું બોલીએ. ઓકે. a pipe is like something like 2 mm thick. ओके. उसमें क्या रातों रात आप 30 साल के हुए और वो ब्लॉक हो गई और फिर आपको हार्ट अटैक हो गया? नहीं. राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2 years उसमें थोड़ा 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 करके प्लेक जमा होना शुरू हो जाता है. तब जाके वो 30-35 years की एज पे हार्ट अटैक होता है. So fried food is any day not recommended until and unless it is unavoidable. Like for example, आप किसी पार्टी गैदरिंग्स में जा रहे हैं once a while और आपको देना पड़े तो it's fine. लेकिन it is not recommended for any age group. Am I clear? फिर हम बोलते हैं कि 30-35 साल में शर्मा जी के बेटे को हार्ट अटैक हो गया. उसकी मम्मी उसे टिफिन में फ्रेंच फ्राइज ही देती होगी. Yes, any other question? What have you done for maintaining your diet? Who, me? Is that question for me? Yeah, ma'am, might be maintaining your diet. Oh, okay, my diet. Okay, first let me come very clear. I'm 35 years of age. So, very difficult to maintain. The only thing I do is I stay hydrated. मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ. मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ और मैं फ्राइड फूड्स शुगर्स नहीं लेती हूँ. It has been 6 years now कि मैंने शुगर्स नहीं लिए हैं in any form. Okay. एंड बस बैलेंस करना सीखिए. अपनी प्लेट बहुत ज्यादा कलरफुल बनाइए. खाने में मजा आएगा. और डाइट हमेशा वही सिलेक्ट कीजिए जो पॉकेट फ्रेंडली हो. नहीं कि कोई सेलिब्रिटी डाइटिशियन का बनाया हुआ किनोवा खिचड़ी और चिया सीड वाटर और ये सब 10-15 दिन अच्छा लगता है. फिर वो पॉकेट पे भारी होने लगता है तो छूट जाता है. So best है हमारी खिचड़ी बनाते वही बेस्ट है. आई थिंक सो. डेफिनेटली खिचड़ी तो वर्ल्ड बेस्ट फूड डिक्लेयर किया गया है. कितने खाते हैं क्वेश्चन ये है. एक डाइट जब हम सिलेक्ट करते हैं ना किसी भी एज ग्रुप के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल होना चाहिए. ऐसा डाइट जो आप फॉलो कर सकें. ऐसा कोई भी डाइट सिलेक्ट मत कीजिए. अभी आज के ट्रेंड में आप गूगल खोलेंगे ना तो पैलियो डाइट, कीटो डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, वीगन डाइट, पता नहीं क्या क्या आपको मिलेगा. ये हम इंडियंस नहीं कर सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट्स इज नॉट मेड फॉर इंडियंस. स्पेशली गुज्जूस नहीं कर सकते हैं. एवरी सेकेंड मील हमारा कार्बोहाइड्रेट डेंस है. तो किसी भी डाइटिशियन के पास भी जब आप जाते हैं अपना डाइट सेट करवाने के लिए तो उन्हें बोलिए, फ्रैंकली बोलिए कि हम बीच में एक बोल चिपड़ा खाते हैं, 2-3 चकली चली जाती है. वी ईट
There's nothing wrong when you eat. आप डाइटिशियन के पास तभी जा रहे हैं जब आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, टू बी ओपन, तभी आप उनके पास से राइट डाइट ले पाएंगे. Right? Any other question, ma'am? Anything from you? No, thank you. Thank you. You had completed your session. Yeah. Last point, I think so. Yes, mostly all points are covered. If I'm missing out on any point, please let me know. We are asking to audience now. Any more questions from? Okay, Tanvi. Thank you. Was insightful inputs on how you manage your diet for the kids and family during this lockdown period. This will benefit our audience and help them to plan a tasty diet, a Yes, colorful meat for their family. definitely. And just keep in mind, I'll very quickly summer up my diet. Don't force your choices, kids ho ya husband ho. Number two, make your plates and meals very colorful. सबकी choices को ध्यान में रख के your meals have to always be planned. Number three, most important, sugar होनी ही नहीं चाहिए. Very less, in case जरूरी है तो very less. Use jaggery instead. ठीक है. प्ले आउटडोर गेम्स मैक्सिमम, स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, अपना हो या बच्चों का हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा क्वालिफाइड डाइटिशियन को ही कंसल्ट कीजिए. उनका क्वालिफिकेशन पूछने के बाद ही उनसे डाइट लीजिए. आप अपनी हेल्थ दे रहे हैं तो बी केयरफुल. हमने आज ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा था कि जो अपने आप को सेलिब्रिटी डाइटिशियन कहते हैं वो लोगों तक क्या पहुंचाते हैं कि एवरी मील में घी खाइए, शुगर केन जूस लीजिए, आप तला हुआ फूड खाइए, फिर उनके पास जाके लाखों रुपए दे के आइए. ऐसा मत कीजिए. थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग. We would love to hear your in future sessions also. Thank you for joining us and providing us this wonderful inputs about the diet. Thank you so much. The pleasure is all mine. Audience, you can put queries here or you can visit the page of Health Mock, a holistic diet clinic where Miss Tanvi will be actively available to help you out in the planning diet. Yes, I have all my information on my page. You can contact me anytime. Thank you all and our listeners for joining us live. Thank you so much. Namaste.